ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੇ ਬਰਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੇਰ ਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜੇਗੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ। फैमिलियां के नाल ना फैमिलियां सारे, जब तक माँ बाप बेदार ना हो बच्चे कभी नहीं बेदार हो सकते। माँ बाप को खुद चाहिए कि जाओ जल्दी करो तैयारी करो। 6 दिन असं कुछ नहीं कहते किसी को। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਹਫਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਓ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ थी। ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਆਤੇ ਨੇ ਬਸ਼ਯੂਨਾ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਖੂਨ ਕਾਫੀ ਵਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ फिर लोगों को सदन। इस कदर आदम मजबूर हो चुका है, शौर लोगों के अंदर खत्म हो रहा है। तो कोशिश करें हम खुद भी जो टाइम साइड करें। अभी भी घरों में खाने के बाद भी हो सकता है। अब आदत का टाइम आप देखिए घंटा डेढ़ इबादत होती है सिर्फ, तो उसी में वाइंड अप हो सकते हैं। तो खुदा का खादम हमारे साथ ऑनलाइन तैयार है। मैं संडे का मैसेज तो नहीं किसी को देता, मगर उन्होंने मजबूर किया था कि कहते हमारी ड्यूटी है तो मेहरबानी अगर आज मुझे टाइम दे तो फिर मैंने उनको टाइम दिया। हालेलुया। अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की जोड़ी को महसूस करेंगे। शाबाश। आंखें Hello. बंद दुआ करेंगे सब। जस्ट Hello. Hello. Are you ready? Yes, hello. Can you hear me? Okay, 1 second, sir. One second. सब सारे दुआ करेंगे। पीछे जा। मेरे बहन भाई बेटे बेटियां आने का हेलो माइक नहीं आ रहा। You hear me? Are you listening? I can hear you. Hello. Hello. I can hear you. It's okay. You're Can you hear me? बोल नहीं बड़ी बात हम दिन दिए थे।
Hello? Hello, can you hear me? No. No voice. No? Let me check. लो यार कुछ नहीं कुछ बता मैं Um, कुर्सी पे रख के बैठा कुंज पे बैठ मैं कुर्सी रख Can you hear me now? Can you hear me now? Hello? Hello, can you hear me? Yes, yes, yes. Okay. Hello? Hello, hello. Yes, Okay, okay. Thank you so much. thank you. So last course, hallelujah. Hello, hello, people from Pakistan. Hello, people from Faisalabad. सदम फैसलाबाद दे शाबाश जोरदार ताली बजाएं हालेलुया क्लोज योर आईज ओपन योर हार्ट फॉर गॉड अपनी आंखें बंद करेंगे स्वरों को जगाएंगे और हालेलुया सिंगिंग द कोर्स Salam alaikum. हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं तेरा पाक रूह बड़े जोर के साथ काम करे हॉली स्पिरिट बड़े जोर के साथ काम करे छू खुदा बड़ी बरकत बड़ी रहमत कर जितने भी तेरी हुजूरी में बैठे हैं, तेरे कलाम को सुने और तेरा पाक रूह बड़े कष्ट से और जोर से काम करे खुदावंद My brother and Holy Spirit touch in the name of Jesus today is wonderful in the sermon, the topic and gospel. Mark, thank you, Jesus. Glory to God. Praise the Lord in the name of Jesus. Open the door, open the heaven. In the Jesus name, by faith and Jesus Christ's name. Thank you, Jesus' name. Hallelujah, my church. And the today's and the received message in the blessing feeling and the testimony life and the honest life and the spiritual life. Mind of the chain and Jesus Christ, life of the chain and Jesus Christ. Thank you, Jesus. Glory to God. Gracias, Jesús. Nombre Jesús. My brother and sister, your family that touch us for Jesus' name. Wonderful today's time. Thank you, Jesus' name. Amen. Amen. जोरदार ताली बजाएंगे हालेलुया हालेलुया वैसे ऊपर आया हालेलुया 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 जोरदार ताली यीशु के नाम वेलकम माय ब्रदर थैंक यू सो मच Thank you too. Subah bakhair. Salam ji. Yes, Salam ji. Salam ji. Good morning, Salam ji. Salam alaikum, Pakistan. Yes, Good Salam morning, Salam ji. Salam ji. Salam ji. Yes. Okay, okay. Yes, yes. Okay. Yes, you can start the word of God, my brother. We are ready. Okay.
Well, I will introduce myself. पहले सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहूंगा। My name is Pablo, and I live in Italy. कह रहे मेरा नाम पाब्रो है और मैं इटली में रहता हूँ। I was born in Argentina, and Yes, वो कह रहे मैं अर्जेंटीना एक इलाका है उसमें पैदा हुआ था। so this is Argentina, as you know, is the land of Messi. अर्जेंटीना जो है एक मर्सी इलाका है, उसका शहर है। And with my wife, we serve in a church in Italy since 2019. Yes, वो कह रहे कि मैं अपनी बीवी के साथ 1920 में मतलब कि शिफ्ट हुआ इटली में। And we have a son of 2 years old, 2.5 years old. His name is Thomas. कह रहे मेरा एक बेटा है, वो 2.5 साल का, उसका नाम है थॉमस। And last week I knew Pastor Indrias. गुजरे हुए लास्ट हफ्ता में वो कह रहे कि मैं पास्टर इंद्रियास से मिला। And he contacted me to share the word of God with you. और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ खुदा के कलाम की मनादी करें। And I am very, very happy, and I thank the Lord to know you. और मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार था कि खुदा ने मुझे ये मौका फराहम किया। So I will share the word of God with you today. और आज मैं खुदा का कलाम जो आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। And I hope this will be of a tremendous blessing for all your community. और मेरा ईमान है कि आज का कलाम आप सबके लिए बहुत ही बरकतफुल होगा। Amen. Okay, so if you are your Bibles with you, अगर आप सबके पास आपकी कलाम मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस है, let's look for Mark chapter 2. आए हम कलाम मुकद्दस में से मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब। And we will, Yes. we will read from the verse 1 to the 12th. और मरकस की अंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। So my brother, I will read in my Urdu language, okay? मरकस की अंजील दूसरा बाब और 1 से 12 आयत तक। कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना हो सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उठेर कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां पास फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों कर ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलौफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलौफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमीन। Amen. Glory to God for his word. खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, खुदा उनके नाम को जलाल आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। How many of you already know this story? कितने लोग हैं जो स्टोरी के बारे में पहले से ही जानते हैं।
मखलूज के बारे में। Yes, मखलूज की story के बारे में। Okay, it's a very known story, isn't it? ये बहुत ही मशहूर स्टोरी है बाइबल मुकद्दस की। So, what is teaching us this portion of the Word of God? और जो आज का जो टॉपिक है वो इस कलाम के मुताबिक क्या बनता हमारी जिंदगियों के लिए। Okay, so there are three things that I identified on which is teaching us this portion of the Word of God. और मैं तीन चीजें जानता हूँ जिनके बारे में मुझे इस कहानी में से जो मिली है। So the first thing is that it's very important for us to have people in our lives that take us to God. जो पहली बात है वो ये है कि वो बहुत ही खास बात है कि लोग किस तरह उस मखलूज को यीशु के पास लाए। The man in the mat needed from other people to get to Jesus. क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने उस मखलूज को यीशु के पास लाए, Without their help, it will be impossible to get to Jesus. वो उन आदमियों की मदद के बगैर यीशु के पास कभी नहीं जा सकता था। It is very important to maintain a close connection with our brothers and sisters in Christ. हमारा ये बहुत ही खास रिश्ता एक दूसरे बहन भाइयों के साथ होना चाहिए अगर हमने मसीह में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब रूहानी तौर पर हमारे बहन भाई होंगे तभी हम मसीह के पास पहुंचेंगे। आमीन। And they will be a good help in times of problems. क्योंकि जो मसीही बहन भाई हमारे होते हैं वो हमारी मुश्किल में हमारे बहुत ही अच्छे मददगार होते हैं। हालेलुया। There is nothing that the devil can do if we are united and close to one another. क्योंकि जब हम इत्तेफाक के साथ इत्तेहाद के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं तो तब हम मसीह में भी आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। The Lord Jesus says in Matthew 18:20, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील 18 बाब की 20 आयत, "For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them." मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। So this means that Jesus never sent anyone to minister another people alone. क्योंकि खुदा ने किसी को भी अकेला नहीं भेजा, खुदा ने यही चाहा है हर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहे। हालेलुया। In Luke 10, he sent on a mission 70 people 2 by 2. क्योंकि जिस तरह हम लूका के इंजील में देखते हैं कि उसने अपने लोगों को भेजा 2-2 करके। He sent them to preach the kingdom of God and heal people. ताकि वो खुदा के कलाम की मनादी को फैला सके, आसमान की बादशाही के बारे में बता सके, उन लोगों को शिफा दे सके। Another story that says that when we are united, it's everything is possible is Acts chapter 2. क्योंकि अगर हमें इत्तेफाक होगा तो जिस तरह ईमान दूसरे बाप के मुताबिक हम देखते हैं, अगर हमें इत्तेफाक होगा तो खुदा हमारी जिंदगी में जरूर बड़े काम करेगा। When the Spirit of God descended on Pentecost, they were all together in one place. जिस तरह यीशु मसीह चाहता है कि एक जगह जब वो सारे लोग इकट्ठे थे जब पाक रूह का नज़ूल हुआ, इसी तरह मसीह चाहता है कि हम भी खुदा में इकट्ठे मिलकर खुदा की तमजीद करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। हालेलुया। As you are today. जिस तरह आप सब इकट्ठे बैठे हैं। So I don't know your situation in Pakistan, but क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हालात है मुल्क पाकिस्तान में, but you need to be united. आपको चाहिए कि आप सब इत्तेफाक के साथ इत्तेहाद के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। Now the second thing that I see here on this passage, और दूसरी बात जो मैं इस पैसेज के मुताबिक देखता हूँ, is that sometimes we have excuses to get to Jesus.
क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं कि हम या चर्च नहीं आते या खुदा के पास नहीं आते। But even if you have a wall or a roof to get to him, maybe you will need to break it. क्योंकि अगर आपका दिल आपका ज़हन खुदा की तरफ होगा तो आप सारे बंधनों को तोड़ेंगे यीशु के नाम से और खुदा के घर में आएंगे। Hallelujah. Great. These people broke the roof to take their friend to the feet of Jesus. जिस तरह उन लोगों ने छत को उखाड़ दिया और ताकि उस मफलूज को यीशु के पास लाए। When the Bible says in Mark 9:23, everything is possible for one who believes, क्योंकि जिस तरह मरकस के इंजील में लिखा है कि यीशु के हुजूरी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं बल्कि वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। Hallelujah. this means that the person that really believes in God's power, he will seek every way to get the favor of God. यस, क्योंकि जब आप ईमान रख लेते हैं कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है तो आप जो कहते हैं आपके लिए खुदा कर देता है। आमीन। Amen. The favor of God will not come if you are seated waiting for a miracle to happen. क्योंकि अगर आप ईमान है आपका ईमान नहीं है तो आपको शिफा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका ईमान खुदा पर है तो खुदा आपकी मुश्किल हालातों को मुश्किल बंधनों को तोड़ने की कुदरत रखता है। आमीन। Miracles happen when we move and make everything to create the conditions so God can operate. मुआजिज़ात होते जाएंगे और जिस तरह खुदा चाहता है आपकी जिंदगी बदलती जाएगी और मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। Amen. It's not okay if you sit there in this way and say, "Oh, I will wait for the will of God." यस, अगर आप बीमार हैं तो आप इस तरह बैठे रहे और कहेंगे कि मैं नहीं जा सकता चर्च में या खुदा के घर में क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, क्योंकि इस तरह खुदा हमें शिफा नहीं देगा। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा के लिए बेदार करेंगे तो खुदा आपके लिए जरूर शिफा को नाजिल करेगा। Amen. Hallelujah. Even if you have obstacles like a roof or a wall, you can get to Jesus if you broke them. यस, जिस तरह उन लोगों ने उस छत को उखाड़ दिया और उस मफलूज को खुदा के पास लाए, अगर आपकी जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात हैं तो खुदा उनको भी तोड़ेगा और आपको आजाद करेगा और आपको शिफा देगा। Lord Jesus said in his word, you in the world you will have problems, क्योंकि but आप कह सकते हैं कि तो जिंदा खुदा है तो हमारी सारी मुश्किलातों को खत्म करने की कुदरत रखता है। Amen. but he said, believe in me, I defeat all these problems. और वो कहेगा कि तू मुझ पर यकीन रख तो मैं सारी तेरी मुश्किलातों को दूर कर दूंगा। Now, the third most important thing that can happen when we take a person to the feet of Jesus is the forgiveness of sin. तीसरी बात जो हम इस पैसेज में पढ़ते हैं कि अपने गुनाहों की माफी मांगना या हमारे गुनाह माफ होने। Amen. These people took their paralyzed friend to be healed, but first they got another answer from Jesus. क्योंकि जिस तरह ये लोग उस मफलूज को मसीह के पास लाए, लेकिन उसने सबसे पहले उससे कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। Amen. Jesus said, "Son, your sins are forgiven." खुदा ने कहा, ऐ बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। I think that these people would stay this way. क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसी वक्त उन लोगों की आंखें इस तरह से खुली कि ये क्या कह रहा है। They got surprised because they took their friend to be healed, but Jesus said, "Your sins are forgiven." वो लोग हैरान हुए कि हम तो इसलिए इसको यीशु के पास लाए ताकि इसे शिफा दे, लेकिन वो उसे कह रहा है कि तेरे गुनाह माफ हुए। जोरदार तालियां। Thank you. So it's useless to heal someone from an illness if its sins are not forgiven. क्योंकि वो इस तरह हैरान हो गए कि खुदा ने कैसी बड़ी कुदरत के साथ उसको पहले गुनाहों की माफी दी और बाद में उसे शिफा दी। Now let me tell you something. Forgiveness of sins must be our central preaching topic.
क्योंकि जो सबसे खास बात ये है कि गुनाहों की माफी होना हमारे लिए बहुत ही सबसे पहले जरूरी है। अगर हमें गुनाहों की माफी मिलेगी तो फिर ही हमारे लिए शिफा के दरवाजे खुले जाएंगे। आमीन। It's useless to preach about healing, miracles, and blessings if we don't preach the forgiveness of sins. अगर हम मसीह में पढ़ना चाहते हैं और हमारे गुनाह माफ नहीं हुए तो हम कभी भी खुदा से बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। Amen. आमीन। Jesus is the only one that can forgive sins, no one else. यस, यीशु मसीह ही एक वाहिद रास्ता है जो हमें गुनाहों से माफी दे सकता है। उसके अलावा हमारे गुनाह कोई इंसान नहीं माफ कर सकता। Yes. The Lord wants to use you in Pakistan. खुदा चाहता है कि आप पाकिस्तान में खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल हो। How many of you serve in something? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम खुदा के लिए इस्तेमाल हो। Hallelujah. प्रेज गॉड। This is awesome. यस, ये बहुत ही हैरान कुन है और बहुत अच्छी बात है। Sometimes we have people in Italy that don't serve the Lord but go to church only. यस, बाज़ औक़ात ऐसे लोग इटली में भी हैं कि वो खिदमत तो नहीं करते लेकिन वो चर्च जरूर जाते हैं। So it's beautiful to see people that almost every one of you raised your hands. ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात है कि जितने लोग भी हैं उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अपने हाथों को बुलंद किया। Your neighbors, your relatives, your friends need to know about the forgiveness of sins. आपके पड़ोसियों को, आपके बहन भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को ये जानने की जरूरत है कि सिर्फ यीशु है जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। You know that no one will enter the heaven if their sins are not forgiven. क्योंकि कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जबकि उसके गुनाह माफ ना किए जाएं। You know that maybe your life is the only Bible that a person could read in his entire life. क्योंकि कोई भी इंसान बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के बगैर, इसके अंदर जो खुदा के कलाम की बातें लिखी है उसको पढ़ने के बगैर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। Yes. So when we know Jesus, we have the responsibility to speak about him. क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में मसीह है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह के बारे में दूसरों को बयान करें। Amen. Amen. आमीन। So, brothers and sisters of Pakistan, तो मेरे let's भाइयों पाकिस्तान में रहने वालों, let's make our lives a living worship for God. हमें अपनी जिंदगियों को खुदा की तमजीद के लिए, प्रस्तिश के लिए सर्व करने की जरूरत है। Yes. Amen. आमीन। Okay. So, let's pray. आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। यस, बाबा आपको बताएंगे दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। Dear Lord, I thank you. आसमानी खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। I thank you for this church. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए। I thank you for every person here present. और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने लोग तेरी हजूरी में हैं। And I ask you, Lord, to bless their lives. और खुदावंद आसमानी खुदा, इनकी जिंदगियों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं And to supply every need. और इनकी सारी जरूरियात को खुदावंद पूरा कर। In the name of Jesus, Lord, I ask you to heal every heart. और यीशु के नाम से खुदावंद इनके दिलों को भी तेरे पाकलों में छुपाते हैं। In the name of Jesus, Lord, I ask you for these people to be courageous to preach your word. यस, आसमानी खुदा, इन लोगों के लिए तुझसे खुदावंद मांगते हैं कि ये खुदावंद तेरी वर्शिप करे, तेरी प्रस्तिश, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करें। Lord, I thank you for the people of Faisalabad. और खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन लोगों के लिए जो फैसलाबाद में रहते हैं। I thank you, Lord, for every person on Pastor Indria's church. और मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर इंद्रियास के चर्च के जितने भी लोग हैं। I thank you for his family also.
और मैं इनके खानदान के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ And thank you also for giving me the opportunity to know them. और खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे ये तौफीक बख्शी ये मौका दिया कि मैं इनको जान सकूं I worship you, Lord, for every life here present. और खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और हर एक लम्हात में तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता हूँ I ask you to bless the little boys, और मैं खुदावन यीशु के नाम से इन छोटे बच्चों को भी खुदावन ब्लेस करता हूँ the little girls, और ये छोटी जितनी बच्चियां हैं इनको भी their moms and dads, जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं सबको in every family present that represents your body. यस और सारे खानदानों को भी खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं तेरी हजूरी में लाते हैं जितने तेरी हजूरी में झुके हैं Thank you, Lord, for these people. In the name of Jesus. और यीशु के नाम से खुदावन इन सब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं ये मांगते हैं आपके खूबसूरत और जलाली नाम से आमीन Amen. आमीन Amen. हालेलुया जोरदार ताली बजाएंगे दोनों हाथों को उठाकर जोरदार ताली so wonderful blessing my dear brother so blessing feeling great faith हालेलुया हालेलुया आइए वर्शिप करेंगे भाई श्री वो गीत गाएंगे तेरे वादों पे शाबाश वो गीत गाएंगे हाँ जी वो शायद बनवेन करेंगे so उर्दू सिंगिंग एंड वर्शिप जी ब्रदर आली बनाएंगे सारे मेरे वादों पे भरोसा रखना मेरे वादों पे भरोसा रखना ये आऊंगा ये आऊंगा ये आऊंगा रखना मेरे वादों पे भरोसा रखना मेरे वादों पे भरोसा रखना
हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और अब जो इसी कलाम पर जो खुदा के बंदा ने बड़ी दूर दराज से इटली से हमें सुनाया उसे पर और ज्यादा रोशनी पाएंगे हमारे सीनियर पास्टर इंद्रियाज। लेकिन इससे पहले हम दुआ करेंगे बेटे एल्डर सजाद के साथ मिलकर। Go to the church. You go to the church. इतनी प्रोसेस हो चुकी इस बात Okay. God bless you. Thank you so much. जितने बाद में अपने आप से Call later. खुदा से Bye bye. और